Hello guys, my name is Dheeraj Kumar Gupta and you all are welcome in my this YouTube channel that is Networking Knowledge. Today we discuss the satellite communication. In a previous video we already discussed some radio frequency, terrestrial microwaves and the other videos which is totally depend on the wireless communication. So this is today's video is also depend on the wireless communication, and in these videos we discuss the satellite communication. So let's start. First of all, what do you mean by the satellite communication? So the first thing is that what is satellite communication? So in this, a communication satellite is an artificial satellite that relays and amplifies radio's telecommunication signals via a transponder. It creates a communication channel between a source transmitter and a receiver at different location on Earth. So as you know that in the satellite communication we are performing the communication through the space, and this communication is depend on the space communication. So the satellite is the artificial object which is rotated around the Earth. So in some particular orbit this object is rotated, and this satellite is used for the communication purpose. So जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम लोगों ने देखा कि ये एक प्रकार का रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स होता है जो एक ट्रांसमिटर रिसीविंग एंटीना और ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू परफॉर्म करता है थ्रू आउट दी वर्ल्ड। एक ये अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट होता है और जिसके थ्रू हम लोग सिग्नल को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। A satellite is a simple any body that move around another, usually much larger, one in a mathematical parabolic path called an orbit. So this is the satellite which is rotating around the Earth, and it rotates that particular path, and that path is called the orbit. So ये जो path होता है ये mathematically depend होता है और मैथमेटिकली इसे हम लोग कैलकुलेट करके उस पर्टिकुलर पाथ पे ये जो हमारा सैटेलाइट है वो रोटेट होता है और उसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2000 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स orbiting Earth relay analog and digital signal carrying voice, video and data to and from one or many locations worldwide. So this is the approximately 2000 of the artificial satellites are rotating around the Earth, and which can be carries the signals, that is the digital or analog signal, that is the voice, video or data throughout the world. So this is the use of this satellite. How satellite works? Now we discuss the how satellite works. Two stations on Earth want to communicate through radio broadcast but are too far away to use conventional means. So whenever we are communicating through the satellite, that the distance between the two Earth stations is so long, and that's why we are using the satellite for communicating purpose. The two stations can use a satellite as a relay station for their communication. So on the Earth there is a two station, one is the transmitter, another one is the receiver. Transmitter transmit the signals through the space, and there in the space there is a satellite, and that satellite it transmit that signal to the another part of the Earth, and there is the receiver antenna, and that receiver antenna receive the signal and communicate the signals. One Earth station send a transmission to the satellite. This is called a uplink. So जिस ट्रांसमिशन एंटीना से हम लोग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं सैटेलाइट तक, उसे हम लोग अपलिंक कहते हैं। The satellite transponder convert the signal and send it down to the second Earth station
दिस इज कॉल्ड अ डाउनलिंक। सो वो जो ट्रांसमीटर होता है, दैट ट्रांसमीटर ट्रांसमिट द सिग्नल, उसे हम लोग अपलिंक कहते हैं। और सैटेलाइट में ट्रांसपॉन्डर होता है, वो उसे सिग्नल्स को कन्वर्ट करके उसे आगे फॉरवर्ड करता है सेकंड अर्थ स्टेशन तक, और उसे हम लोग डाउनलिंक कहते हैं। सो इन दिस वे दिस सैटेलाइट वर्क द टू different places. So in this diagram we have the one transmitter which transmit the signal towards the satellite, and this is called the uplink, and from the satellite it transmit the another receiving antenna, and this is called the downlink. So this diagram indicate uplink and downlink of the signals. Now the type of satellites. Generally we are there are two types of satellite. One is the passive satellite and another one is the active satellite. So the first one is the passive satellite. If you put a hydrogen balls that has a metallic coating, cover it up in the air, it technically become a passive satellite. Such a balloon can reflect microwave signal from one place to another. The passive satellite is in space are similar. These satellites just reflect the signal back towards the earth without amplification. So जैसे कि हम लोगों ने देखा कि there are the two types of satellite. First one is the passive satellite. In this passive satellite we are using the hydrogen balloons of the metallic coating, और उसे हम लोग स्पेस पे सेटअप करते हैं। वहां से ये जो पैसिव सैटेलाइट्स होती है जस्ट क्या करते हैं, वो जो माइक्रोवेव्स वहां तक रिफ्लेक्ट होती है उसे वो रिसीव करके बैक टू दी अर्थ उसे वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये जो सिग्नल रिफ्लेक्ट होते हैं अर्थ पे ये विदाउट एम्प्लीफिकेशन के थ्रू ये रिफ्लेक्ट होते हैं, और ऐसे जो सैटेलाइट्स होते हैं उसे हम लोग पैसिव सैटेलाइट्स कहते हैं। अनदर वन इज द एक्टिव सैटेलाइट. So the active satellite is, unlike a passive satellite, amplified and transmit the signal before retransmitting it back to the earth. So जो एक्टिव सैटेलाइट होते हैं वो जो सिग्नल्स उनके पास में रिसीव्ड होते हैं उसे वो री एम्पलीफाई करते हैं, और एम्पलीफाई करने के बाद में उसे रीट्रांसमिट करते हैं बैक टू दी अर्थ, ensuring excellent signal strength. Passive satellites were our earliest communication satellite, but now almost all are the new one are active satellites. So ये जो पैसिव सैटेलाइट्स होते थे ये पहले हम लोग यूज करते थे, लेकिन आजकल के जितने भी नए सैटेलाइट्स यूज कर रहे हैं वो सब एक्टिव सैटेलाइट्स है, जो कि आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं और उसे रीट्रांसमिट करते हैं अर्थ के दूसरे स्टेशन तक। Satellite network orbits. So generally we discuss now the satellite network orbits. जो सैटेलाइट जो रोटेट होते हैं अर्थ पे उसके कुछ ऑर्बिट्स होते हैं। An artificial satellite need to have an orbit, the path in which it travels around the earth. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो अर्थ के पर्टिकुलर पाथ पे रोटेट होते हैं, उसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। सो जो ये पाथ यूज करते हैं उसके हम लोग यहाँ पे कुछ टाइप्स देखने जा रहे हैं। द फर्स्ट टाइप इज द इक्वेटर ऑर्बिट सैटेलाइट, जो आपके अर्थ के मिडल से रोटेट होता है। दूसरा जो टाइप होता है दैट इज द इंक्लाइंड ऑर्बिट सैटेलाइट, जो आपके अर्थ के पूरा अर्थ को रोटेट होता है पर वो मिडल से ना होते हुए डायगोनली वो रोटेट होता है। और जो थर्ड टाइप है दैट इज दी पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट, वो आपके पोल के थ्रू वो रोटेट होता है, नॉर्थ से साउथ पोल। सो एक पोल के थ्रू और सैटेलाइट जो ऑर्बिट पे रोटेट होता है उसे हम लोग पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट कहते हैं। तो इस तरीके से ये तीन वे से जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं वो रोटेट होते हैं, और उसके बेस पे इनके टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया दैट इज दी equatorial orbit satellite, inclined orbit satellite, and third one is the polar orbit satellites. Now we discuss the satellite categories. So there are three types of satellite categories. First one is the GEO, that is
geostationary Earth orbit. Second one is the MEO, that is the medium Earth orbit, and the third one is the LEO, that is low Earth orbit. So the satellite has the three types, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसके तीन टाइप में हम लोगों ने इसे डिवाइड किया है. First one is the GEO, that is the geostationary Earth orbit. Second one is the MEO, that is the medium Earth orbit, and third one is the LEO, that is the low Earth orbit. So ये जो सैटेलाइट होते हैं ये हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. Now satellite orbit alternatives. So here there are the three types, and these three types is rotated on the Earth. So the first one is the geostationary Earth orbit. This is the distance of this GEO is 35,786 kilometer. So GEO is so far the Earth's surface, and the distance from the Earth's surface is 35,786 kilometer above the Earth. So this GEO is rotated on the Earth, and it is so far. And the next outer band available belt, that is the 15,000 to 20,000 kilometer. Now the next one is the MEO, that is the middle Earth orbit. It is rotated on the 5,000 to 15,000 kilometers. So this is the MEO, and it is rotated to the 5,000 to 15,000 kilometer. And the last one is the LEO, that is low Earth orbit. It is less than 2,000 kilometer from the Earth's surface. So this is the LEO, and this is the distance of the LEO is 2,000 kilometer from the Earth. So this is the setup of this all the satellites which is revolving or on the Earth. So अर्थ के सरफेस पे जैसे कि ये रोटेट हो रहा है, तो उनके जो पोजीशन है इस तरीके से सिचुएटेड की हुई है. जैसे कि हमारा जो GEO होता है वो सबसे ज्यादा दूर पे रोटेट होता है अर्थ सरफेस पे, और उसके बाद जो मिडल में होता है दैट इज द मिडल अर्थ ऑर्बिट, दैट इज द MEO, वो मिडल में रोटेट होता है. इस टाइप की जो सैटेलाइट्स होती है ये मिडल में रोटेट होती है, और जो अर्थ के बहुत पास होती है वो होती है LEO, जो 2000 किलोमीटर के आसपास उसमें रोटेट होती है. सो दिस इज द सैटेलाइट ऑर्बिट एटीट्यूड्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज द सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड. सो जो ये सैटेलाइट्स होती है इनकी कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड्स होती है. वी डिस्कस दिस. सो दिस बैंड इज L, S, C, KU एंड KA, जिनकी डाउनलोड लिंक, अपलोड लिंक और बैंडविड्थ दी हुई है, जिसमें कि डाउनलोड लिंक फॉर L है 1.5 गीगाहर्ट्ज टू 1.6 गीगाहर्ट्ज अपलोड लिंक है, और जो इसकी बैंडविड्थ होती है दैट इज दी 15 मेगाहर्ट्ज. S वाले जो बैंड है उसकी जो डाउनलोड लिंक होती है दैट इज 1.9 गीगाहर्ट्ज, और जो अपलोड लिंक होती है दैट इज 2.2 गीगाहर्ट्ज, और बैंडविड्थ जो इसकी है दैट इज 70 मेगाहर्ट्ज. वैसे जो C बैंड होता है इसकी जो डाउनलोड लिंक होती है दैट इज 4.0 गीगाहर्ट्ज, और अपलिंक जो होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है दैट इज 6.0 गीगाहर्ट्ज, और जो बैंडविड्थ यूज करता है ये 500 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ यूज करता है. उसके बाद के जो बैंड होते हैं दैट इज दी KU. इसकी जो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज 11 गीगाहर्ट्ज, और अपलिंक जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज दी 14 गीगाहर्ट्ज, और जो इसमें जो बैंडविड्थ होती है दैट इज दी 500 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ यूज करता है. सेकंड लास्ट है जो बैंड दैट इज दी KA बैंड. इसकी जो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है 20 गीगाहर्ट्ज, अपलिंक जो फ्रीक्वेंसी है 30 गीगाहर्ट्ज, एंड जो बैंडविड्थ है दैट इज दी 3500 मेगाहर्ट्ज की ये इसकी बैंडविड्थ ये प्रोवाइड करता है. सो दिस इज द बैंड एंड देयर फ्रीक्वेंसीज. अब इसमें से जो हमारा L बैंड एंड S बैंड इज यूज फॉर मोबाइल सैटेलाइट सर्विस,
and offer good penetration through adverse weather condition and foliage. सो ये जो हमारे दो बैंड होते हैं दैट इज दी एल और एस, ये जो दो बैंड होते हैं ये मोबाइल सैटेलाइट सर्विस के लिए यूज किया जाता है और इस जो ये जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है ये गुड पेनिट्रेशन प्रोवाइड करती है अगर हमारा वेदर खराब भी है तब भी। नेक्स्ट जो है दैट इज दी सी बैंड, पब्लिक स्विच नेटवर्क के लिए ये यूज होता है। उसके बाद में के यू बैंड एंड के ए बैंड, रूरल टेलीफोनिक, सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, हाई स्पीड इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड मल्टीमीडिया के लिए ये यूज किया जाता है। सो इस तरीके से जो भी सैटेलाइट्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ वी डिस्कस दी सैटेलाइट ऑर्बिट एल्टीट्यूड। सो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो भी डिस्टेंस होते हैं जो भी सैटेलाइट्स होते हैं वो डिपेंड ऑन देयर कैटेगरीज के बेस पे ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे बताए हुए हैं कि जिसमें कि जो सबसे हमारे अर्थ के सरफेस से ज़्यादा दूर रोटेट होते हैं वो होते हैं जियो। इनकी जो किलोमीटर है दैट इज 35,786 किलोमीटर के अबव फ्रॉम द अर्थ वो रोटेट होते हैं। उसके बाद सेकंड इज द मियो दैट इज द मिडल अर्थ ऑर्बिट, इट रोटेट 5,000 to 15,000 kilometer from the earth surface, and the last that is the Leo, it is rotated on 2,000 kilometer from the above of the earth. So this is the satellite orbit attitude. Now we discuss the geosynchronous satellite. So this geosynchronous satellite is rotated around the earth, कि अर्थ के सेंटर से ये सैटेलाइट का एक रेडियस डिफाइन किया जाता है एंड थ्रू दैट इट रोटेट थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड हम लोग इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड से। द फर्स्ट वन इज द जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट दैट इज द जियो। दीज सैटेलाइट आर इन ऑर्बिट 35,786 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस अलोंग द इक्वेटर। सो ये जो रोटेट होता है ये आपके अर्थ सरफेस से 35,786 किलोमीटर अबव इक्वेटर पे ये रोटेट होता है हमारा, दैट इज द जियो। ऑब्जेक्ट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट द सेम स्पीड एज द अर्थ रोटेशन। सो जो हमारी अर्थ की जो स्पीड होती है उसी स्पीड से ये भी जो सैटेलाइट्स हमारे होते हैं दैट इज द जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट वो रोटेट होते हैं। दिस मीन्स जियो सैटेलाइट्स रिमेन्स इन द सेम पोजीशन रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो यहाँ पे जब भी अर्थ रोटेट होता है उसी स्पीड से हमारे जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है ये सैटेलाइट भी उसी स्पीड से रोटेट होते हैं, तो ये सेम पोजीशन रिफ्लेक्ट करते हैं जो अर्थ की जहां पे हमने इसे सिचुएटेड किया है उसी इस पोजीशन से ये हमें डेटा रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑन जियो सैटेलाइट कैन नॉट कवर द होल अर्थ, इट टेक्स मिनिमम ऑफ 3 सैटेलाइट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। सो जैसे कि अभी इसके पहले वाले हमने फिगर में देखा कि जो हमारे ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होते हैं दैट इज जियो ऑर्बिट होते हैं, ये पूरे अर्थ का जो डेटा है वो कवर नहीं कर सकते क्योंकि ये इसकी जो रोटेटिंग स्पीड होती है वो अर्थ के बराबर होती है। तो जहाँ जिस पोजीशन पे हम इस सैटेलाइट को सेट करते हैं उसी पोजीशन पे ये हमें मिलता है क्योंकि वो अर्थ के जो रोटेटिंग पोजीशन है उसी स्पीड से ये भी रोटेट होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे 3 जो सैटेलाइट है इसी सेम टाइप की उसकी जरूरत पड़ती है, तब जाके हम ये पूरे अर्थ का डेटा गैदर कर सकते हैं। एडवांटेजेस, जियो सैटेलाइट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ गिव्स इट अ लार्ज कवरेज एरिया ऑलमोस्ट a fourth of the अर्थ सरफेस। सो इसका एक एडवांटेजेस ये है कि ये जो जियो सैटेलाइट्स होते हैं ये अर्थ के 4th ऑफ द पोर्शन को ये कवर करते हैं। जियो सैटेलाइट्स हैव अ 24 आवर व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया।
सो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये पर्टिकुलर 24 आवर्स के जो भी डेटा है उसको व्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये रोटेट होते हैं अर्थ की स्पीड से। These factor means it ideal for satellite broadcast and other multi-point applications. So जनरली इसमें ये देखा जाता है कि ये जब सैटेलाइट्स ब्रॉडकास्ट परफॉर्म करते हैं, सो ये परफॉर्म करते हैं मल्टी पॉइंट एप्लीकेशंस पे, और ये वर्क करते हैं कई सारे एप्लीकेशंस जो हम लोग इसके यूज कराते हैं। Now we discuss the some disadvantages. A geosatellite distance also cause it to have both a comparatively weak signals and a time delay in the signal, which is bad for point-to-point communication. So यहाँ पे ये लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण जो भी इनकी जो सिग्नल्स होते हैं वो टाइम डिले परफॉर्म करते हैं, और जो सिग्नल्स परफॉर्म होता है और जो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करते हैं उसमें ये कुछ सिग्नल्स वीक हो सकते हैं। सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस जियो सैटेलाइट्स। जियो सैटेलाइट सेंटर्ड अबव द इक्वेटर हैव डिफिकल्टी broadcasting signal to near polar region. So as we know that the geosatellites is far away from the earth's surface and it rotated on the equator, तो यहाँ पे जब इसी आपके आसपास के जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो सिग्नल ब्रॉडकास्ट करना होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द जियो सैटेलाइट्स। नाउ वी डिस्कस द मिडल अर्थ ऑर्बिट, दैट इज द मियो। मियो सैटेलाइट्स इज इन ऑर्बिट समवेयर बिटवीन 5000 kilometer to 15,000 kilometer above the earth surface. So as you discussed in previous slide कि जो ये सैटेलाइट्स होते हैं हमारे, दैट इज द मियो, दैट इज द मिडल अर्थ ऑर्बिट, ये जो सिचुएटेड होते हैं ये 5000 किलोमीटर से लेके 15,000 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर में ये सिचुएटेड होते हैं। मियो सैटेलाइट आर विजिबल फॉर मच longer period of time than LEO satellite, usually between 2 to 8 hours. So इनकी जो विजिबिलिटी होती है ये लॉन्ग पीरियड के लिए विजिबिलिटी होती है। इससे जो लोअर में जो हमारे सैटेलाइट होते हैं दैट इज द लियो, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट, एंड इनकी जो यूजिबिलिटी होती है बिटवीन दी 2 to 8 आवर्स की होती है। MEO satellites have a longer coverage area than LEO satellites. So as you know that the MEO is situated above the earth, that is the 5000 kilometer to 15,000 kilometer above the earth surface, and the LEO is above the 2000 kilometers on the earth surface. So that's why the coverage of the MEO is greater than the LEO. Now the advantages of the MEO. MEO satellites, a longer duration of visibility and a wider footprint means fewer satellites are needed in a MEO network than a LEO network. So as you know that it is situated on the longer duration and its the visibility is the wider than the LEO. सो इसीलिए ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये जो भी कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं ये कम्युनिकेशन आपके जो लियो सैटेलाइट्स है उससे ज़्यादा अच्छे होते हैं। लॉन्गर टाइम डिले एंड शॉर्टर सिग्नल देन जियो सैटेलाइट्स। सो जैसे कि हमने देखा है इसके पहले में कि जो हमारे जियो सैटेलाइट्स होते हैं वो जनरली पूरा का पूरा एरिया जो है अर्थ का वो कवर नहीं कर सकते हैं। उसमें जनरली ये देखा जाता है कि वो जो रोटेट होते हैं हमारे जियो वो अर्थ की स्पीड पे रोटेट होते हैं, वाइल ये जो हमारा मियो होता है इट इज शॉर्टर टाइम डिले परफॉर्म करता है और स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स को ये सेंड करता है देन दी जियो। सम डिसएडवांटेजेस ऑफ मियो। अ मियो सैटेलाइट डिस्टेंस गिव्स इट अ लॉन्गर टाइम डिले एंड वीकर सिग्नल देन अ लियो satellite. True, not as bad as the geo signals.
सो जनरली ये देखा जाता है कि मियोज में जो सैटेलाइट डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है वो लॉन्गर टाइम डिले के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और जो वीकर सिग्नल्स होते हैं देन लियो सैटेलाइट, ये उससे ज़्यादा अच्छे नहीं होते जितने कि हमारे लियो के होते हैं। एग्जाम्पल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे हम लोग जीपीएस भी कहते हैं। नाउ वी डिस्कस दी जीपीएस एग्जाम्पल ऑफ मियो, constructed and operated by US Department of Defense. So this the example of GPS example है जो मियो का, that is constructed and operated by the US Department of Defense, ये यूज करते हैं। There are 24 satellites in 6 orbits. So उनके जो है 24 satellites है जो 6 orbits में रोटेट हो रहे हैं। Used for land, sea and air navigation to provide time and the location of vehicles and ships. So जितने भी हमारे vehicles और ships है उनकी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए जो हमारी ये जो लियो सैटेलाइट्स है, ये एज ए जीपीएस की तरह उसे यूज करते हैं, जो कि सिचुएटेड होते हैं कि हमारे में नेविगेशन प्रोवाइड करना होता है, जो लैंड, सी और एयर का नेविगेशन प्रोवाइड करके आपको ये बताते हैं कि उनकी पोजीशन कहाँ है, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं या तो जो शिप्स होते हैं उनकी। The satellites in each orbit are designed in such a way at a time minimum 4 satellites are visible for any point on the earth. So इनकी जो डिजाइन किया गया है और इनको जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि मिनिमम 4 सैटेलाइट्स जो है वो विजिबल करेंगे कि अर्थ की किसी भी 4 पोजीशन को वो विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी डिस्कस द ग्लोबल स्टार एग्जांपल ऑफ लियो। सो लियो के कुछ ग्लोबल स्टार एग्जांपल है, दैट इज इट हैज 48 सैटेलाइट्स इन 6 लियो ऑर्बिट। सो जो लियो ऑर्बिट है उसके 48 सैटेलाइट्स अवेलेबल है इन लियो ऑर्बिट में। Each have altitude of 1400 किलोमीटर्स। सो ये जो 1400 किलोमीटर के अंदर में ये जो सैटेलाइट्स को सेटअप किया हुआ है। The ground station can create more powerful signals। सो जो सिग्नल्स क्रिएट होते हैं ग्राउंड स्टेशन से वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि जो लियो सैटेलाइट होता है हमारा वो पृथ्वी से, अर्थ से काफ़ी पास में होता है। So this is the diagram where this LEO satellites is rotating throughout the Earth. Now the next one is the telediscrete example of LEO. So this is the another satellite. It provide fiber optic link, that is the broadcast channel, low error rate and low delay. So telediscrete जो satellites है that प्रोवाइड दी फाइबर ऑप्टिकल लिंक्स। इस सैटेलाइट्स में हम लोग फाइबर ऑप्टिक लिंक्स प्रोवाइड करते हैं जो ब्रॉडकास्ट चैनल प्रोवाइड करता है लो एरर रेट और लो डिले के साथ में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता। इट हैज 288 सैटेलाइट्स इन 12 लियो पोलर ऑर्बिट्स। सो 12 पोलर लियो ऑर्बिट में 288 सैटेलाइट्स अवेलेबल है जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके देते हैं। ईच हैव एल्टीट्यूड ऑफ 1350 किलोमीटर्स। सो ये जो सैटेलाइट सेटअप है ये होते हैं अर्थ सरफेस से 1350 किलोमीटर अबव। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द टेलीडेस्टिक लियो सैटेलाइट्स। सो ये जो टेलीडेस्टिक लियो सैटेलाइट है ये आपके अर्थ सरफेस के अबव में, दैट इज 1350 किलोमीटर पे सिचुएटेड है, और ये पूरे के पूरे 288 सैटेलाइट्स है जो 12 लियो पोलर ऑर्बिट पे सेटअप किए गए हैं। नाउ वी डिस्कस द जीपीएस। सो दिस इज द जीपीएस डायग्राम। सो दिस ऑल आर द रोटेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। Now the next one is the LEO satellite system. So in this LEO satellite system, this is the type of satellite is above the 2000 kilometers above the Earth surface, and it can use for the
communication purpose. So this is the transmitter antenna, and this can be reflecting the signals. So this is the LEO satellite systems. Advantages of these satellites: the coverage area of the satellites greatly exceeds that of a terrestrial system. सो जो कवरेज होता है इस टाइप के सैटेलाइट्स का वो ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड करता है देन दी टेरेस्ट्रियल जो सिस्टम्स हम लोग यूज़ करते हैं उसके यूज़ में. ट्रांसमिशन कॉस्ट ऑफ द सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम. सो जो ट्रांसमिशन जो कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं जनरली अगर हम लोग माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा, सो डिपेंड करता है वो डिस्टेंस पे. इसमें जो कॉस्ट ऑफ द सैटेलाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस के. द सेंटर ऑफ द कवरेज एरिया, जो भी इसका सेंटर ऑफ द कवरेज एरिया होता है उसके थ्रू ये सैटेलाइट्स हम लोग परफॉर्म करते हैं. सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज वेरी प्रीसियस. सो सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है इसमें, कि जैसे कि हमने देखा है कि जो लियोस जो ऑर्बिट के जो सैटेलाइट्स होते हैं उसमें हम लोग सैटेलाइट टू सैटेलाइट भी कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं. हाई बैंडविड्थ्स आर अवेलेबल फॉर यूज. सो जैसे हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ मिलेंगी वो काफ़ी ज़्यादा हमें बैंडविड्थ मिलती है. नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस: लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू द ऑर्बिट इज कॉस्टली. सो जनरली जब भी हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं इस ऑर्बिट में तो वो कॉस्टली होता है. Satellite bandwidths is gradually becoming used up. So कई सारे जो सैटेलाइट्स होते हैं तो उस सैटेलाइट्स के बेस पे जैसे भी इसकी बैंडविड्थ प्रोवाइड की जाती है तो वो यूज हो सकती है, तो उस सैटेलाइट के बेस पे हमें वो चीज़ों को ध्यान में रखना होता है. There is a larger propagation delay in satellite communication than in a terrestrial communication. सो यहाँ पे ये जो हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं तो इसमें जो प्रोपोगेशन डिले होता है ये लार्जर होता है देन जो हम लोग टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में. सो दिस इज ऑल अबाउट दी satellite communication. I hope so you all understand what is the satellite communication, which type of the satellite category we use, which type of these satellites we use, which orbit we are using. So this is all about the satellite communication. In case if you have any doubt, then you will write on the comment section. I will definitely reply you. Okay, bye bye.